Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi, going to present 13th video of Transfer of Property Act. In this video lecture, we will try to understand doctrine of election as provided in section 35 of the Act. मित्रों, संपत्ति अंतरण अधिनियम की इस 13वीं वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में प्रावधानित निर्वाचन के सिद्धांत को समझेंगे। बहुत आसान है। दो द सेक्शन इज वेरी लेंथी बट द डॉक्ट्रिन इज वेरी इजी। यद्यपि यह धारा बहुत लंबी है लेकिन इसमें लिखा सिद्धांत बहुत आसान है, वेरी इंटरेस्टिंग। इट अप्लाइज as an exception of section 7. Section 7 of the Act provides that a person can transfer property either he himself has title to transfer or authorized by the person entitled to transfer the property before transferring the property. The authorization must be prior to transfer. मैं अपना घर तो बेच सकता हूं, I can sell my own house, I can sell your house too, but after being authorized by you. So authorization to transfer your house must be prior to transferring the house by me. मैं आपका घर बेच सकता हूं कब? जब आप मुझे पहले से प्राधिकृत करेंगे। तो व्हाट इज प्रायर? प्रीवियस authorization and transfer is subsequent. The series of the crumb, the order of authorization and transfer is authorization then transfer. So a person can transfer another's property but being authorized by the person. So he must be authorized by the person whose property he is going to transfer before making such transfer as provided in section 7. धारा 7 यह प्रावधानित करती है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तो अंतरित कर ही सकता है, अन्य की संपत्ति भी अंतरित कर सकता है, लेकिन अन्य के द्वारा प्राधिकृत होने के बाद अंतरित करे। यदि प्राधिकृत होने से पहले ही अंतरित कर देगा और प्राधिकार बाद में लेगा तो अंतरण मान्य नहीं होगा। धारा 7 यही कहती है। बट सेक्शन 35 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7 बिकॉज it provides validity of a transfer by a person who has not been authorized by the owner of property and subsequently he means the person who is owner of the property gives his assent to the transfer. धारा 35 एक ऐसे अंतरण को विधि मान्यता प्रदान करती है, विधिक मान्यता देती है, जिसमें कि कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति बिना उसके प्राधिकार पाए ही अंतरित करता है और वह बाद में प्राधिकार दे देता है, कैसे? सहमति के रूप में। लेकिन इसके लिए इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 35 एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 7 the three conditions must be fulfilled. There are three essential conditions. A person transfers another's property having no authority to transfer. Okay, इसको ऐसे समझते हैं। A person named A transfers, ये B की प्रॉपर्टी है, B's property
to C. A transfers a property having no authority to transfer. It means another's property. Transfers means obviously in favor of another person. The other person is C. And then he further transfer his own property. एक इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, किसकी? ए की. ये क्या करता है? And then he further transfers his own property in favor of the person whose property he transfers unauthorizedly. जिसकी प्रॉपर्टी वो बिना प्राधिकार के अंतरित किया, उसके पक्ष में वो अपनी कोई संपत्ति अंतरित करता है. ठीक है. अभी हम बेट नहीं पढ़ेंगे. बेट की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है. लैंग्वेज ऑफ बेट इज डिफर फ्रॉम द लैंग्वेज इन विच आई एम टीचिंग यू. आई एम एक्सप्लेनिंग, बट दिस इज प्रैक्टिकल लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज इज अलाउड टू बी यूज इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू. ओके. मेरी भाषा में ही आप परीक्षा में लिखिएगा और उत्तर दीजिएगा. तो फिर से समझते हैं. A had transferred B's property without having any authority, without being authorized by B in favor of C, whether with or without consideration. अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे. C ने A को consideration दिया था कि नहीं दिया. And transfers his own property, his property, in favor of B as benefit. ठीक है. और उसके बदले में वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी B को ट्रांसफर करता है. ये B है. ओके. He further transfers his own property in favor of the person whose property he has transferred or he transfers unauthorizedly. जिसकी संपत्ति वो अनधिकृत रूप से अंतरित करता है, उसके पक्ष में अपनी संपत्ति को अंतरित करता है. इसके अलावा बोथ द ट्रांसफर्स मस्ट बी इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन. बोथ द ट्रांसफर्स मस्ट बी इन सिंगल ट्रांजैक्शन. ठीक है. B to C and A to B. These must be, both the transfers must be in single transaction. ये दोनों ही अंतरण वो एक ही विलेख में करता है, एक ही साथ करता है. Then the other person named B, as per the is B. Then the other person have right to elect. तो B के पास ऑप्शन होगा क्या? Either to take A's property and then he will lose his own property. तब वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा and it will go to C. तब वो संपत्ति C को चली जाएगी. और descend to the transfer, या सभी अंतरण को मना कर दे. इसको मना कर देगा तो B इसको नहीं मिली, ये इसको नहीं मिली. फिर से समझते हैं यहां से. अब मैं जो लिखा हूं चार्ट पे बोर्ड से उसको देखिए. पहला क्या है? अ पर्सन ट्रांसफर्स अनदर्स प्रॉपर्टी हैविंग नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हैविंग अथॉरिटी फ्रॉम द पर्सन, विदाउट बीइंग अथॉराइज्ड बाय द पर्सन. ठीक है. Such kind of transfer is bad, but when the conditions provided in section 35 are fulfilled, such kind of transfer may be valid. यदि सारी शर्तें पूरी धारा 35 की, तो ऐसा अंतरण ही मान्य हो सकता है. फिर दूसरा वो क्या करता है? He means the person who transfer, who make the unauthorized transfer.
he further transfers his own property in favor of the person whose property he transferred unauthorizedly. वो जिसकी प्रॉपर्टी अनऑथराइज्डली ट्रांसफर करता है उसको अपनी प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर रहा है, कैसे? उसके बदले में, ठीक है, बदले में। Both the transfer must be in a single transaction, दोनों ही सिंगल ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, ट्रांजेक्शन। तो फिर क्या होगा? Then the other person means whose property has been transferred unauthorizedly, ठीक है, अदर पर्सन, वो दूसरा व्यक्ति, हैव राइट टू इलेक्ट, तो उसके पास निर्वाचन का अधिकार होगा। ये कौन है? ये निर्वाचक है। B is elector. Who is elector? B has right to elect. क्या करेगा? Elect the transfer in his own favor or not. वो चाहे तो अपने पक्ष में किए गए अंतरण को स्वीकार करे या न करे। But if he elects so, he will be deprived from his own property and unauthorizedly transferred. अगर वो अपने पक्ष में किए गए अंतरण को स्वीकार करेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी अनऑथराइज्डली ट्रांसफर की गई है, बिना प्राधिकार के इन्हें ट्रांसफर की है, उससे वो डिप्राइव हो जाएगा और वो तब सी को चली जाएगी। ठीक, यहां तक आपने समझ लिया। अगर वो नहीं करेगा then the person in whose favor the unauthorized transfer is made will be disappointed. तब क्या होगा कि वह व्यक्ति जिसके पक्ष में अनऑथराइज्ड ट्रांसफर किया गया सी, वो मायूस हो जाएगा। आप सोचिए कि इसमें सी के फेवर में प्रॉपर्टी जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? सी के फेवर में प्रॉपर्टी जाए, इसके लिए जरूरी है कि बी ऑप्ट करे, बी इलेक्ट करे, ठीक है। अगर बी नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी, बी की जो प्रॉपर्टी उसी को नहीं मिलेगी, वो बी के पास रह जाएगी। देन इफ बी डजंट इलेक्ट एज प्रॉपर्टी, डजंट accept as property, then he will not be deprived from his own property and so C will be disappointed. तो अब C क्या हो जाएगा? C will get no right, क्योंकि B प्रॉपर्टी से ट्रांसफर की गई तो C को कुछ मिलेगा ही नहीं। जब C को कुछ मिलेगा ही नहीं, when C will get nothing, then he will be called as disappointed transferee, ठीक है। तो ये क्या है? ये ट्रांसफरी है, अंतरती है, ये निर्वाचक है, ये अंतरक है, ट्रांसफरर, और ये अंतरती है। जब ये नहीं चूज करेगा तो क्या हो जाएगा? इसे हठी अंतरती कहा जाएगा, हठी अंतरती, ठीक है। और सी को क्या कहा जाएगा? डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर, निराश अंतरती। जब नॉट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निराश अंतरती हो जाएगा। Then what kind of remedy would be available to the disappointed transferee? This has been provided in the web in section 35 and I have written on board. तो उसके पास क्या क्या विकल्प होंगे ये देखिए। रेमेडीज टू डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर, निराश अंतरती के अधिकारी। डिसअपॉइंटेड कब होगा? जब बी इलेक्ट नहीं करेगा, व्हेन बी विल नॉट इलेक्ट। क्या क्या अधिकार मिलेंगे? इसको पहले दो पार्ट में बांटा गया, ए और बी में हमने बांटा। फर्स्ट आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ए एंड बी। ए एंड बी, बी को पहले पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर विद कंसिडरेशन, C has paid consideration to A for doing so. C ने A को कंसिडरेशन दिया था कि तुम B की प्रॉपर्टी मुझे दे दो और अपनी A B को दे दो। C has paid consideration. In such a situation क्या होगा?
जरा देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। नीचे सेकेंड बी वाला पार्ट देखिए, बी इन केस ऑफ ट्रांसफर विद कंसिडरेशन the amount of consideration will be charged on the property transferred authorizedly। तो जो जितना वो अमाउंट, जितना प्रतिफल दिया है, वह प्रतिफल ए जो अपनी संपत्ति बी को अंतरित कर रहा था उस पर भार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो तरह का अंतरण है। फिर से हम चलते हैं चार्ट पे। देयर आर टू ट्रांसफर्स, वन ऑथराइज्ड ट्रांसफर एंड सेकेंड इज अनऑथराइज्ड ट्रांसफर। ठीक है, ये अथराइज्ड ट्रांसफर है, ये अनअथराइज्ड ट्रांसफर है। तो जब सीए निराश कर दिया इसको, तो ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? जब ये निराश कर देगा तो ए की ए के पास रह जाएगी, बी की बी के पास रह जाएगी। बट इफ द ट्रांसफर मेड इन फेवर ऑफ सी इज विद कंसिडरेशन, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन विल बी चार्ज ऑन द एज प्रॉपर्टी। वो ए की उस संपत्ति पर भार हो जाएगा जिसे ए बी को ट्रांसफर कर रहा था। But if it is a transfer without consideration, ए वाला देखिए, in case of transfer without consideration, here there are two positions. Nothing, no remedy shall be available to disappointed transferee if the transferor is competent to make a fresh transfer, is competent to contract, is competent to make a fresh transfer। देखिए, दान ही तो किया है, तो अगर दाता जिंदा है और संविदा के लिए सक्षम है तो सी को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो जिंदा है, संविदा के सक्षम है, तो जो चाहे वो दे। इफ ए इज अलाइव एंड कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स ही इज एबल टू मेक अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेश ट्रांसफर, देन इट वुड बी लेफ्ट ऑन ए टू मेक अ फ्रेश ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सी और व्हाट एवर यू वांट। जो कुछ भी हो, चाहे वो करे सी के फेवर, चाहे कुछ दे या ना दे, विदाउट कंसिडरेशन। बट सेकेंड ऑप्शन क्या है यहां? अदरवाइज, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं रह गया, वो मर गया या संविदा के लिए सक्षम नहीं रह गया, इफ द ट्रांसफर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक अ फ्रेश ट्रांसफर, द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हैव राइट टू गेट एन अमाउंट ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अनऑथराइज्डली ट्रांसफर्ड टू हिम फ्रॉम the author from the property transferred to authorized transfer from the property of transfer। यहां प्रॉपर लैंग्वेज होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अथराइज्डली। जो यदि वो मर गया या संविदा के लिए सक्षम नहीं रह गया, तो ए आखिर बी को क्या देना, सी को क्या देना चाहता था? बी की संपत्ति। ये बी, हम इनका नाम रख लेते हैं, ये ए की है, इसका नाम एक्स है, ये बी की है, इसका नाम वाई है, ये एज है, ये बीज है। तो ए सी को क्या देना चाहता था? वाई प्रॉपर्टी। इसका मूल्य मान लेते हैं 8 लाख है। 8 लाख रुपए की संपत्ति देना चाहता था, इसकी अपनी खुद की संपत्ति 10 लाख रुपए की है। तो ए सी को कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी देना चाहता था? ऑफ 8 लाख। वैल्यू ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रांसफर प्रॉपर्टी शैल बी चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर which he authorized to transfer, which he transferred authorizedly। ठीक है, जिसे वो प्राधिकार पूर्वक ट्रांसफर किया था उस पर वो भार हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मर गया तो, क्योंकि यही तो दान करना चाह रहा था वो,
सी को कितना 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, तो इसमें से 8 लाख रुपए इसको पाने का हक हो जाएगा अगर ये मर गया, संविदा के सक्षम नहीं रह गया तो। इस प्रकार आपने देख लिया कि यहां क्या लिखा हुआ है और क्या है। इलेक्शन का पूरा प्रभाव आपने देखा। अब अगली बात, पहली बात लैंग्वेज पे थोड़ी चर्चा करें। आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन लैंग्वेज। Where a person professes to transfer property. Why professes to transfer property? Because without having authority to transfer another property, no one can transfer property. So their language is professes to transfer property. संपत्ति, दूसरे की संपत्ति अंतरित करने की प्रव्यंजना करता है। अंतरित तो कर नहीं सकते आप अथॉरिटी के बिना, इस नाते ये शब्द लिखा। Which he has no right to transfer. Okay. And as part of the same transaction, उसी ट्रांजैक्शन में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, and part of same transaction, इसी नाते मैंने लिखा हुआ, confers any benefit on the owner of the property. देखिए बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा वैल्यू की हो सकता है इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज हो, बट बी के लिए ज्यादा वैल्यूएबल होगी, ज्यादा यूजेबल होगी, तो बेनिफिट माना जाएगा। ये तो बी पे होगा ना कि बी उसको अपने लिए यूजेबल समझता है या नहीं समझता, प्रयोग के लायक लाभदायक समझता है कि नहीं समझता है। ठीक है, such owner must elect either to confirm such transfer or to dissent from it. तो जो दूसरा जो है वो चाहे तो इसे यस करे या नो करे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, and in the latter case he shall relinquish the benefit so conferred. अगर वो नॉट कर देगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो उसकी प्रॉपर्टी तो उसके पास रहेगी, जो ये उसको बेनिफिट दे रहा वो नहीं पाएगा। Here there is difference between Indian law and Anglo law. एंग्लो लॉ में जो ऑथराइज्ड ट्रांसफर वो ट्रांसफर बना रहेगा, और बी की जो प्रॉपर्टी है जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफर वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जो ऑथराइज्ड ट्रांसफर वो बना रहेगा। हमारे यहां क्या है, इंडिया में ये है कि ठीक है, रिफैक्ट्री डोनी, इसको हठी अंतर्ती कहेंगे, हठी रिफैक्ट्री डोनी। ठीक है, जब हट करेगा नॉट करेगा तो क्या हो जाएगा, रिफैक्ट्री। एंग्लो लॉ में क्या है कि अगर ये नॉट भी करेगा तो भी ये ए की प्रॉपर्टी पा लेगा, बट कंपनसेशन सी को ये खुद देगा, बी को देना पड़ेगा। इंडियन लॉ में अगर ये डिसेंट करता है तो कुछ भी नहीं पाएगा, और कंपनसेशन सी यहां से देगा। यही अंतर है इंडियन और ब्रिटेन लॉ में। यानी ब्रिटेन में बी को ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी जाने दे सी को या कॉम्पनसेट करे सी को। ओके, बट हम लोग अब इंडियन लॉ देखते हैं। अगली बात क्या है, एंड द बेनिफिट सो रिलिंक्विश्ड शैल रिवर्ट टू द ट्रांसफरर as his representative as if it had not been disposed of। ठीक है, और वो जो बेनिफिट जो बी को ट्रांसफर किया जा रहा था, अगर बी आउट नहीं करेगा तो वो रिवर्ट हो जाएगा, कहां चला जाएगा, ट्रांसफरर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को। ओके, सब्जेक्ट नेवरदलेस, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये इसके राइट्स लिखे हुए हैं। वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेसियस विदाउट कंसिडरेशन, ग्रेसियस। ठीक है, एंड द ट्रांसफर, मैं बेड से पढ़ रहा हूं, आप भी बेड से पढ़िएगा, ग्रेसियस है, बिना किसी प्रतिफल के है। एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन डाइड और अदरवाइज बिकम इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफर, एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। ये वाली पोजीशन, सॉरी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इक्वल है, ये दोनों सेम है, ये आ गया, ये सेम है। सेम में अंतर क्या है,
ये बिना कंसिडरेशन के है, जिसमें वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पाएगा जो अनऑथराइज्ड उसको ट्रांसफर की जा रही थी। ये विद कंसिडरेशन है तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पाएगा, चार्ज होगी कहां पे, जो अथराइज्ड ट्रांसफर की जा रही थी प्रॉपर्टी उस पे, जो संपत्ति प्राधिकार पूर्वक अंतरित की जा रही थी उस पर। ठीक है। एंड इन ऑल केसेस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन टू द चार्ज ऑफ मेकिंग गुड टू द डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर इज द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। द अमाउंट कब, जब कंसिडरेशन है, और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ये कब, जब नॉट विदाउट द गैसियस है, अटेम्प्टेड टू बी ट्रांसफर टू हिम। ओके। अब यहां कुछ और भी बातें हैं बेयर एक्ट में, बहुत लंबी सेक्शन है जिसको पढ़ना है। कुछ और भी बातें हैं जिनको पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेंगे आप? तो जो मोटी मोटी महत्वपूर्ण सारी बातें थी वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आई हैव टॉट यू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, बट देयर आर सम मोर प्रोविजंस, सम रिमेन प्रोविजंस provided in this section have to be teach to you, have to be taught to you। ठीक है, कुछ प्रोविजंस बच गए जिसको पढ़ाना है आपको, समझाना है। इनको आप कैसे समझेंगे? सपोज करिए A makes the both transfers believing that he is owner of the both properties X and Y। A जब ट्रांसफर कर रहा था, he was in confusion, actually he was not owner of X property, but he made some transfers, such transfers having a belief that he is owner of the both properties। Even doctrine of application, doctrine of election is applied if he is not owner of X property which he transfers in favor of B, and B is owner of X property। यदि B, देखिए सच्चाई क्यों जाने B, क्योंकि इलेक्शन उससे करना है। ये भले नहीं जान रहा था, ये क्या कर रहा है, ये को दोनों प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये अगर इस भ्रम में रहते हुए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, X नामक प्रॉपर्टी B को और Y नामक C, ये जानते हुए कि दोनों उसी की है, जबकि Y प्रॉपर्टी उसकी नहीं थी, B की थी। B इस बात को जान रहा था, B was acquainted with the reality and he elects, then application the doctrine of election shall be applied। तो निर्वाचन का सिद्धांत लागू होगा। ए भले न सच्चाई जाने, अगर B जान रहा है, बट B का सच्चाई जानना जरूरी है। Who must be acquainted with the reality about the title? It is B। ठीक है। Who has right to elect, जिसको इलेक्ट करने का अधिकार है उसको सच्चाई जानना जरूरी है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरी बात, अगर इसे ज्ञात नहीं है, if B doesn't know that if he will accept the transfer in his own favor, he will be deprived from his own property because he do not know that he is owner of the property Y। He was in confusion। Who? B। B was in confusion। B don't know about his ownership, the fact of his ownership। B को पता ही नहीं है कि वो Y नामक प्रॉपर्टी का ओनर है, बल्कि उसको लगता था कि ये तो यही उसका भी ओनर है, बट एक्चुअली ही वाज ओनर। और इस नाते वो X नामक प्रॉपर्टी अपने फेवर में ले लिया। तो क्या यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू होगा? नो। हाउ कैन अ पर्सन बी बाउंड बाय हिज इलेक्शन इफ ही डू नॉट नो द रियलिटी व्हेन ही इलेक्टेड द ऑप्शंस। जब कभी कोई व्यक्ति विकल्पों को चुना, उसमें सच्चाई नहीं जान रहा था, प्रभाव को नहीं जान रहा था, तो क्या उसके द्वारा किए गए निर्वाचन से उसे बाध्य किया जाएगा? नो। द थर्ड इज but it shall be presumed। देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं बैठ से। पहले नियम मैंने क्या बताया? द रूल इन द सॉरी इसको यूं देखिए बैठ में,
The rule in the first paragraph of this section applies whether the transferor does or does not believe that which he professed to transfer to be his own. ठीक है, ये हमने बताया. A person taking so benefit directly under a transaction but deriving a benefit under is indirectly need not elect. ठीक है, ये दूसरा नियम आपने पढ़ा कि जो व्यक्ति ऐसा लाभ ले रहा है अगर वो एक ही समय व्यवहार में नहीं अलग अलग है तो कोई जरूरत नहीं है. कोई व्यक्ति एक हैसियत में डिसेंट करे और दूसरी में एसेंट करे कर सकता है, यहां पे लिखा हुआ है. A person who in his one capacity takes a benefit under the transaction may in another dissent therefrom. ठीक है, वो दूसरे ऐसे से मना भी कर सकता है. ठीक है, जैसे इसके पर्सनल फेवर में बी के की गई बट बी वाज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी वाई, ही मे डिसेंट टेकिंग द प्रॉपर्टी वाई. देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी उसको एक ही कैपेसिटी में दी जानी चाहिए. अगर डिफरेंट कैपेसिटी में दी गई तो सिंगल ट्रांजैक्शन माना ही नहीं जाएगा. वो एक कैपेसिटी में एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे में डिनाई कर जाएगा. बी वाज ट्रस्टी ऑफ वाई प्रॉपर्टी. ठीक है, ये ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी एक्स इन फेवर ऑफ बी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी. ए ने उसकी पर्सनल कैपेसिटी में ट्रांसफर किया. ठीक है, लेकिन बी ने जो है बी वॉज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी वाई. बी जो वाई नामक संपत्ति का ट्रस्टी था उसको उसने सी को ट्रांसफर कर दिया. किसने? ए ने. ऐसे में बी के फेवर में जो एक्स नामक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है उसके पर्सनल कैपेसिटी में है, जबकि वाई प्रॉपर्टी जिसका बी इन टाइटल है वो ट्रस्टी के नाते है. तो डिफरेंट कैपेसिटी में बी को प्रॉपर्टी दी जा रही है और उससे ली जा रही है. The property is being transferred and being taken from in favor of B and being taken from B are in different capacity. In its personal capacity, B may admit the transfer of property X made by A in favor of B, but he can deny the transfer of property Y which he had in capacity of a trustee. जिसे वो एक न्यासी के नाते रखता है उसे वो डिनाई कर सके. ठीक है, तो इस प्रकार यहां दोनों चीजें हैं. ओके, अगली बात हम देखते हैं. When it is presumed that B has elected the transfer in his own favor, कब ये माना जाएगा कि B ने जो है इलेक्शन कर लिया है. तो इसके लिए जरा देखिए एक प्रोविजन लिखा हुआ है. ठीक है, क्या है? That is presumption of election. अगर ट्रांसफरी मीन्स बी 2 years तक इसका यूज करे, इस प्रॉपर्टी का यूज कर जाए, then it will presume that he is acquainted with the reality and he has elected the property. Okay, तो मान लिया जाएगा कि उसने जो है इलेक्शन कर लिया है, या कि वो उसे उसका इस प्रकार से यूज कर ले, किसका? इस प्रॉपर्टी का, कि अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाना पॉसिबल ना हो. ही यूटिलाइज दिस प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन ओन फेवर एज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, हियर द इलस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब केस ऑफ इलेक्शन एराइज, यहां पे एक इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ए ट्रांसफर्स टू बी एन स्टेट टू विच सी इज इंटाइटल्ड एज ए पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन गिव्स अ कोल माइन. ठीक है, ये देखिए ये इलस्ट्रेशन. ए ट्रांसफर्स टू बी एन स्टेट टू विच सी इज इंटाइटल्ड एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन गिव्स सी अ कोल माइन. सी टेक्स पोजेशन ऑफ द माइन एंड एग्जॉस्ट इट.
he has thereby confirmed the transfer of the estate to B. ठीक है, तो अगर एग्जॉस्ट कर लेगा तो माना जाएगा, या 2 ईयर तक यूज करेगा तो माना जाएगा। दूसरी बात क्या है, when A or C can ask B to elect or not, इस पर भी एक बात है, आफ्टर 1 ईयर आप मेकिंग द ट्रांसफर, अंतरण के 1 वर्ष के बाद उससे पूछ सकेंगे। इफ ही डज नॉट, देखिए लास्ट सेकेंड पैरा, इफ ही मीन्स बी, इफ ही डजंट विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर सिग्निफाई टू द ट्रांसफरर और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स his intention to confirm or to dissent from the transfer, the transferor or his representative may, upon the expiration of that period, upon the expiration of that period, which means after 1 year, ये प्री का क्वेश्चन है, it might be asked in pre, it had been asked in pre examinations, require him to make his election, and if he does not comply with such requisition within a reasonable time after he has received it, he shall be deemed to have elected टू कन्फर्म द ट्रांसफर। टू कन्फर्म, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल के भीतर यदि बी न तो इलेक्ट करता है न डिसेंट करता है, तो 1 साल बीत जाने के बाद ही ए या उसका रिप्रेजेंटेटिव बी से कह पाएगा कि तुम इलेक्ट करो या डिसेंट करो। और यदि पूछने पर भी कोई आंसर नहीं देता तो माना जाएगा कि उसने इलेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देन इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज इलेक्टेड द ट्रांसफर, ठीक है। He has confirmed the transfer. He has elected to confirm the transfer. Very important point. 2 चीजें इस पैरा में, लास्ट सेकेंड पैरा में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 ईयर और प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अगर वो डिसेबल हो जाता है कंफर्म करने से, इफ he becomes incapable to make a contract, he becomes incapable to give his assent, the election shall be postponed until disability ceases or until the election is made by some competent authority. अगर वो अयोग्य हो जाता है तो तब तक के लिए निर्वाचन रुक जाएगा जब तक कि वो सक्षम न हो जाए। तो इस प्रकार आपने इस पूरे अधिनियम, पूरे धारा को पढ़ लिया, धारा 35 जिसमें निर्वाचन का अधिकार दिया हुआ है। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। यह सिद्धांत चल अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण पर लागू है। द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज अप्लाइड ऑन ट्रांसफर ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, whether movable or of immovable nature. So you have to apply the doctrine of election on both kinds of properties. Okay, goodbye.